Good morning, students. I am Rajni, science teacher of DAV Police Public School, Kethal. We are starting from the chapter 19, pollution of air. Student, as you know, air is very important and essential component of life. As we take oxygen and plant take carbon dioxide from air. But as the population increase, burden on environment for oxygen is also increased. And with increase in the population, there is cut down of trees more and more. That leads to decrease in oxygen content. And there is also increase in the number of vehicles. This is also lead to the pollution of air. What is this pollution? Pollution means to make dirty. Pollution means the presence of any substance in environment greater than its proportion. Pollution is derived from the Latin word pollinum, which means to make dirty. Any substance present in the environment in the proportion greater than its natural abundance causing the harmful effect is called pollution. Pollutant, and the process is called, phenomena is called pollution. Student, as you know, what is the composition of air? As you have studied earlier, in air there is 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases like carbon dioxide, argon, methane, helium, ozone, water vapor. So these are the proportion of various gases. If there is change in the proportion, of any substance in the atmosphere, that caused pollution. Means the contamination of air by unwanted substance having harmful effect on the growth of living as well as non-living organism is referred to as air pollution. And all such substance that contaminate matlab pollute air are called air pollutants. This is the activity 1. We will do the activity in our classes. What are the causes of air pollution? Air pollution के कारण कौन से हैं? As you have seen in the videos also, I have sent you the link of YouTube video. I think you are gone through the video and note down the causes of air pollution. So excessive burning of fossil fuel, kerosene, petrol, diesel cause air pollution. Smoke from the factories and vehicles cause air pollution. Use of certain harmful substance like chlorofluorocarbon. We will discuss in detail about the chlorofluorocarbon, CFCs. We will discuss it in detail. What are CFCs? What are its effects? So these are the causes of air pollution. About 90% of sulfur dioxide, 90%. Sulfur dioxide is also a air pollutant. Sulfur dioxide भी एक air pollutant है. 90% सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ कोल से थर्मल पावर प्लांट में. 90% सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है. अबाउट 90% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर कम्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. सो अब हम इन सभी एयर पॉल्यूटेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है CO. आपने पहले जो सिंबल पढ़ा हुआ है सबको पता होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2. O2 यानी कि डाई ऑक्साइड, डाई यानी 2 बार. एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है 1. तो CO, यहाँ पे O जो है ये 1 है
तो इसका सिंबल कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, कम्प्लीटली कंबस्ट नहीं होता, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा इनहेल कर लेता है मोनोऑक्साइड ज़्यादा इनहेल कर लेता है तो उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के? कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग हीमोग्लोबिन से बहुत ही अच्छे से आप हीमोग्लोबिन से नोन होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। आपको पता है सबको कि हीमोग्लोबिन जो है ये हमारा एक ब्लड का कंपोनेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी। ये सब आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हीमोग्लोबिन जो है ये कंपोनेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। जब इस हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, यानी कि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने पे हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, एक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से हमारे अंदर सफोकेशन हो जाती है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें सफोकेशन लगती है और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की, सब्सटेंस बनाने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत जल्दी से बनता है। तो जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में आते हैं हमारी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता एंड लीड्स टू सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ। तो इसी तरह से जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का एडवर्स इफेक्ट है, सिमिलरली प्लांट के अंदर भी इसका इफेक्ट होता है। जब हाई कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की आती है तो इट रिजल्ट इन द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। तो ये जो हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड की इफ़ेक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है, वो भी एक एयर पॉल्यूशन का कारण है। तो हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिमिलरली जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला होता है CO2, ऐसे ही जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ते हो तो इसका फॉर्मूला हो गया NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई यानी कि 2, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जब पेट्रोल और गैसोलीन जलते हैं तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है गैस प्रोड्यूस होती है, जैसा आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं? हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ हार्मफुल टू प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है वो प्लांट्स में नहीं हो पाती। रिटार्डेशन का मतलब है ग्रोथ ना होना, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो कम होने लगती है, बहुत ही उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाते हैं जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है एयर में हो। इट रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में होती है। तो वी हैव डिस्कस्ड दीज 2 एयर पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।